آج ہم ایک ایسے خزانے میں آپ کہہ لیں غوطہ لگا رہے ہیں جو حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے، نہج البلاغہ۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر ہم آج اس کے 12ویں حصے یعنی حصہ 12 میں جو اقوال ہیں 221 سے 240 تک، ان پر بات کریں گے۔ یہ وہ ہیں جو ایک مومن کی شخصیت کے بنیادی اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور ہماری رہنمائی کے لیے پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کی تحقیق اور ان کی تشریحات موجود ہے۔ بالکل، یہ تشریحات بہت اہم ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اب سمجھے ان اقوال کا لفظی ترجمہ جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ صفات مل کر ایک مومن کے کردار کی کیسی تصویر بناتی ہیں۔ صحیح، ایک مکمل تصویر۔ ڈاکٹر بروہی کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے اور یہ آج بھی ہماری زندگیوں سے کیسے متعلق ہے، تو آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور، اور یہ بات اہم ہے کہ یہ اقوال محض نصیحتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل اخلاقی اور روحانی، آپ کہہ لیں، ایک فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ اچھا، فریم ورک ہے مطلب فرد کی ذاتی تعمیر سے لے کر اس کے سماجی کردار تک۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان صفات کے باہمی ربط اور گہرائی کو واضح کر سکیں، جیسا کہ ظاہر ہے ماخذ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو حصہ 12 کا آغاز ہوتا ہے قول 221 سے، المومن یکون حلیما، یعنی مومن بردبار ہوتا ہے۔ یہ حلم، یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف نرمی کا نام ہے؟ دیکھیں، حلم صرف ظاہری نرمی نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا جی، ڈاکٹر بروہی اسے علم اور برداشت سے پیدا ہونے والی ایک کیفیت قرار دیتے ہیں۔ یہ غصے کے مقابلے میں ایک مثبت قوت ہے۔ مثبت قوت یعنی اشتعال انگیزی کے باوجود اپنے حواس اور فیصلے پر قابو رکھنا۔ یہ کمزوری نہیں، بلکہ یہ اندرونی طاقت کی علامت ہے جو ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر بروہی کا ایک نقطہ ہے کہ مومن کی نرمی سخت دلوں کو پگھلا دیتی ہے۔ یہ دراصل اسی باطنی قوت کا اثر ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی یہ محض دباؤ میں خاموش رہنا نہیں ہے، بلکہ ایک باشعور قسم کا رد عمل ہے۔ بالکل، باشعور۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کبھی غصہ نہیں کرتا؟ مطلب ناانصافی پر بھی نہیں؟ ڈاکٹر بروہی کی تشریح اس توازن کو کیسے بیان کرتی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ حلم کا مطلب بے حسی یا غیرت کا فقدان بالکل نہیں۔ اچھا۔ بلکہ یہ ہے کہ غصہ ذاتی انا یا جذبات کی رو میں بہہ کر نہ آئے، وہ اصول اور مقصد کے تابع ہو۔ ڈاکٹر بروہی کی تشریحات اشارہ کرتی ہیں کہ مومن کا غصہ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، ذاتی انتقام کے لیے نہیں۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ ذاتی اشتعال کے موقع پر خود پر قابو رکھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، اگلا قول ہے 222، المومن یکون صابرن، مومن صابر ہوتا ہے۔ صبر کا ذکر تو بہت عام ہے، لیکن نہج البلاغہ اور ڈاکٹر بروہی کی نظر میں اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟ صبر کو تو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور یہ محض آپ سمجھیں تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں۔ جی جی۔ ڈاکٹر بروہی کی تشریح کے مطابق یہ استقامت ہے، ثابت قدمی ہے اور اللہ کی رضا پر قائم رہنا ہے۔ یہ مشکل حالات میں ہمت نہ ہارنا، گھبراہٹ کا شکار نہ ہونا اور شکوہ شکایت سے بچنا ہے۔ صحیح۔ نفسیاتی طور پر جسے آج کل ریزیلینس یا لچک کہتے ہیں نا۔ جی، ریزیلینس یعنی مشکلات کے بعد واپس اپنی حالت پر آنا اور مضبوط ہونا۔ صبر اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر بروہی نے کیا خوب کہا ہے، ایمان بغیر صبر کے جڑ کے بغیر ہے۔ واہ، جڑ کے بغیر ہے۔ جی، یعنی صبر کے بغیر ایمان کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اور دیکھیے، صبر کے فوراً بعد ہی قول 223 آتا ہے، المومن یکون شکورا، مومن شکر گزار ہوتا ہے۔ کیا صبر اور شکر میں کوئی گہرا تعلق ہے؟ یقیناً ہے، یہ تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا۔ صبر مشکل میں ثابت قدمی ہے، تو شکر نعمت ملنے پر اعتراف اور اظہار ہے۔ ڈاکٹر بروہی اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ مومن صرف اللہ کا ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے جو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ یہ اہم نقطہ ہے، لوگوں کا بھی شکریہ۔ جی، یہ شکر گزاری صرف زبانی کلمات نہیں، بلکہ دل کی کیفیت اور عمل کا نام ہے۔ آج کل تو وہ مثبت نفسیات، پازیٹیو سائیکالوجی، وہ بھی شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ کو ذہنی صحت اور خوشی کے لیے کلیدی سمجھتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔
डॉक्टर ब्रूही की तशरीह के मुताबिक शुक्रगुजारी नेमतों में इजाफे का बायस भी बनती है और इंसान को अल्लाह के करीब करती है। ये तो हुई बातनी कैफियत। अब कौल 224 है, अल मुमिनु यकूनु रादिया, मोमिन काने होता है। कनात यानी जो मिले उस पर राजी रहना, क्या ये आज की मादा परस्त दुनिया में मुमकिन भी है? और क्या ये तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन जाती? देखें, कनात का मतलब तरक्की से रुक जाना या हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। अच्छा, डॉक्टर ब्रूही की तशरीह के मुताबिक इसका मतलब है हिर्स और हवस से दिल का पाक होना, दुनियावी मालो मता की मोहब्बत में अंधा ना हो जाना और अल्लाह की तकसीम पर राजी रहना। ये एक अंदरूनी कैफियत है जो इंसान को सुकून देती है। आजकल जिसे मिनिमलिज्म या सादा तर्ज जिंदगी कहते हैं, इसका बुनियादी फलसफा भी कुछ ऐसा ही है कि जरूरत से ज्यादा के पीछे भागने के बजाय जो है उस पर मुतमईन रहा जाए। सही। डॉक्टर ब्रूही के अल्फाज में मोमिन की दौलत कनात है। ये उसे दूसरों का मोहताज होने से बचाती है और हकीकी आज़ादी देती है। ये तरक्की की जिद नहीं बल्कि बेलगाम ख्वाहिशात पर काबू पाना है। यानी तवाज़ुन बहुत अहम है। अच्छा, अगली सिफ्त है कॉल 225, अल मुमिनु यकूनु वरिअन, मोमिन मुत्तकी व परहेजगार होता है। ये वरा क्या है? ये तकवा से कैसे मुख्तलिफ हुआ? वरा आप समझे तकवा की ही एक आला शक्ल है। अच्छा, आला शक्ल। जी, इसका मतलब है सिर्फ हराम से नहीं बल्कि मशकूक और मुश्तबह चीजों से भी बचना। जहां शक हो कि ये चीज जायज है या नहीं, वहां एहतियात का दामन थाम लेना वरा है। बहुत बारीक बीनी हुई। बिल्कुल। डॉक्टर ब्रूही इसे ईमान की मजबूती की अलामत करार देते हैं। ये इंतहाई बारीक बीनी से अपने नफ्स का मुहासबा करना है ताकि इंसान किसी भी ऐसे मामले में ना पड़े जो उसे गुनाह के करीब ले जाए। ये दरअसल खुद पर काबू यानी सेल्फ कंट्रोल और दानिशमंदी प्रूडेंस की आला तरीन मिसाल है। जैसा कि डॉक्टर ब्रूही कहते हैं, मोमिन का वरा उसे गुनाह से बचाता है। ये तो वाकई बहुत ऊंचा मेयार है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कॉल 228 की तरफ। अल मुमिनु यकूनु मुतवाज़िअन, मोमिन आजिज़ी करने वाला होता है। तकब्बुर तो वैसे भी बुरी चीज मानी जाती है, लेकिन इस कॉल में क्या खास बात है? तवाज़ु है आजिज़ी सिर्फ झुककर मिलना नहीं है। नहीं जी नहीं। डॉक्टर ब्रूही की तशरीह के मुताबिक ये अपनी हकीकत को पहचानना है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और तमाम बड़ाई सिर्फ उसी के लिए है। ये तकब्बुर और गुरूर से दिल की मुकम्मल पाकीज़गी है। दिल की पाकीज़गी। जी, ये इल्म, ओहदे या दौलत की वजह से दूसरों को हकीर न समझना है। और दिलचस्प बात यह है कि जदीद मैनेजमेंट थियरीज में सर्वेंट लीडरशिप का तस्वर बहुत मकबूल हो रहा है ना? जी हाँ, सुना है। इसका बुनियादी उसूल यही है कि लीडर खिदमतगुजार और आजिज हो। डॉक्टर ब्रूही का ये जुमला बहुत मानेखेज है, मोमिन झुकता है मगर टूटता नहीं। वाह, झुकता है मगर टूटता नहीं। यानी आजिज़ी कमजोरी नहीं बल्कि किरदार की मजबूती है। अब दो सिफात हैं जो पाकीज़गी से मुताल्लिक हैं। कॉल 232, अल मुमिनु यकूनु अफीफन, मोमिन पाकदामन होता है। और कॉल 236, अल मुमिनु यकूनु हय्यन, मोमिन बाहया होता है। इनमें क्या फ़र्क है और इनकी क्या अहमियत है? देखिए, इफ़्फ़त का मतलब है नफसानी ख्वाहिशात पर काबू रखना, खास तौर पर जिनसी बेरहरवी से बचना और निगाहों और ख्यालात को पाकीज़ा रखना। ठीक। जबकि हया एक वसीतर सिफत है। ये सिर्फ बुराई से शर्म महसूस करना नहीं बल्कि हर उस काम से बचना है जो इंसानी वक़ार के खिलाफ हो। हदीस में तो हया को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। जी, सुना है। डॉक्टर ब्रूही उन दोनों को ईमान की ढाल कहते हैं। फरमाते हैं, इफ़्फ़त ईमान को चमकाती है और हया के बगैर ईमान नहीं। ये सिर्फ ज़ाहिरी पर्दा या शर्म नहीं बल्कि किरदार की गहराई और खुददारी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की अलामत हैं। खुद पर काबू पाने की बात हुई तो कॉल 233 भी इसी से मुतल्लिक लगता है। अल मुमिनु यकूनु काज़िमुल गैज़, मोमिन गुस्से को पी जाने वाला होता है। ये हिल्म से कैसे मुख्तलिफ हुआ फिर? अच्छा सवाल है। हिल्म गुस्से को भड़कने से पहले रोकने या तहम्मुल का मुजाहरा करने का नाम है, जबकि कज़्म गैज़ का मतलब है जब गुस्सा आ जाए तो उसे जब्त कर लेना, पी जाना और उसके मुताबिक अमल ना करना। अच्छा, यानी गुस्सा आने के बाद का अमल। जी, कुरान मजीद ने भी गुस्सा पीने वालों को मोहसिनीन में शुमार किया है। आजकल जिसे जज्बाती जहानत या इमोशनल इंटेलिजेंस EQ कहते हैं, यानी अपने जज्बात को समझना और उन्हें काबू में रखना, ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल।
EQ. डॉक्टर ब्रूही का कहना है मोमिन की ताकत सुकून में है, यानी असल ताकत चीखने चिल्लाने में नहीं बल्कि गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखने में है। ये ताल्लुकात बचाने और फितना फसाद से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ज़ाती औसाफ के सिलसिले में आखिरी कौल 238, अल-मोमिनु यकूनु नज़ीफ़न, मोमिन साफ सुथरा होता है। सफाई निस्फ़े ईमान है, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। जी हाँ, और यहाँ सफाई का मफहूम बहुत वसी है। ये सिर्फ जिस्मानी तहारत और वुज़ू गुस्ल तक महदूद नहीं। जी नहीं, बल्कि लिबास की सफाई, घर और माहौल की सफाई, हत्ता के मामलात और कमाई की सफाई भी इसमें शामिल है। डॉक्टर ब्रूही ने इस पर बहुत जोर दिया है और कहा गंदा मोमिन एक तजाद है। गंदा मोमिन एक तजाद है, ये तो बड़ी सख्त बात है। जी, मतलब ये कि ईमान और गंदगी, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातनी, एक साथ जमा नहीं हो सकती। ये मोमिन की नफासत और उसके मुहज्जिब होने की अलामत है। ये तो हुई ज़्यादातर ज़ाती और अंदरूनी सफ़ात। अब इन अक़वाल को देखते हैं जिनका ताल्लुक दूसरों के साथ मामलात से है। कॉल 226, अल मोमिनु यकूनो आदिला, मोमिन आदिल होता है। और कॉल 237, अल मोमिनु यकूनो मुनसिफा, मोमिन मुनसिफ होता है। अदल और इंसाफ में क्या फ़र्क है? अदल का मतलब है हर चीज को उसके सही मकाम पर रखना, हकदार को उसका हक देना और तवाजुन कायम करना। ठीक। इंसाफ अदल ही का एक पहलू है जिसका ताल्लुक खास तौर पर फैसलों और हुकूक की तकसीम में गैर जानिबदारी से है, यानी अपने और पराए, दोस्त और दुश्मन सबके साथ एक जैसा मामला करना बगैर किसी तासुब के। अच्छा, यानी गैर जानिबदारी। जी, डॉक्टर ब्रूही इन दोनों को ईमान की समाजी बुनियाद करार देते हैं। इनके बगैर माशरे में जुल्म और इंतशार फैलता है। इनकी तशरीहात वाज़े करती हैं इंसाफ के बगैर ईमान नहीं और इंसाफ ईमान का चेहरा है। ये सिर्फ अदालतों का काम नहीं, हर फर्द की जिम्मेदारी है। यानी रोजमर्रा के फैसलों में भी अदल और इंसाफ जरूरी है। फिर कॉल 227 है, अल मोमिनु यकूनु रहीमा, मोमिन रहमदिल होता है। अल्लाह की सिफ्त रहमान और रहीम का अक्स। इसकी क्या अमली शक्ल है? रहमदिली सिर्फ तरस खाने का नाम नहीं है। नहीं, डॉक्टर ब्रूही की तशरीह के मुताबिक ये दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना, एम्पैथी, उनकी मदद करना, उनकी गलतियों से दरगुजर करना और तमाम मखलूकात हत्ता के जानवरों के साथ भी नरमी और शफकत का बर्ताव करना है। जानवरों के साथ भी? जी, ये दिल की वो नरमी है जो इंसान को सख्त दिली और बेहिस्सी से बचाती है। डॉक्टर ब्रूही कहते हैं मोमिन का दिल रहम से धड़कता है। ये सिफ्त माशरे में मोहब्बत और हमदर्दी को फरोग़ देती है। माशरती ताल्लुकात में दो और बुनियादी सतून हैं, सच्चाई और अमानतदारी। कॉल 230, अल मोमिनु यकूनु सादिका, मोमिन सच्चा होता है। और कॉल 231, अल मोमिनु यकूनु अमीना, मोमिन अमानतदार होता है। डॉक्टर ब्रूही इनकी अहमियत कैसे वाज़े करते हैं? सिद्क यानी सच्चाई और अमानत, ये समाजी एतमाद, सोशल ट्रस्ट की बुनियाद हैं। डॉक्टर ब्रूही के मुताबिक इनके बगैर कोई माशरा, कोई कारोबार, कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। बिल्कुल, एतमाद ही सब कुछ है। जी, सच्चाई सिर्फ सच बोलना नहीं बल्कि कौल व फेल में मुताबिकत का नाम है। अमानतदारी सिर्फ माली अमानत तक महदूद नहीं बल्कि राज की हिफाजत, अहद की पासदारी और जिम्मेदारी को पूरा करना भी अमानत है। हदीस में तो झूठ और खयानत को मुनाफिक की निशानियां कहा गया है। डॉक्टर ब्रूही के नुकात बहुत अहम हैं। मोमिन का लफ्ज रोशनी है, यानी उसकी बात वाज़ेह, सच्ची और काबिल एतबार होती है। मोमिन का लफ्ज रोशनी है और मोमिन का वादा उसका मुआहदा है। ये वाकई मुआशरे की बुनियादें हैं। अच्छा, अगला कॉल 229 है, अल मुमिनु यकूनु नासिहन, मोमिन खैरखाना नसीहत करने वाला होता है। नसीहत करना तो बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है, लोग बुरा मान जाते हैं। नुस का असल मतलब है खुलूस और खैरख्वाही। खुलूस? जी, नसीहत का मकसद किसी को नीचा दिखाना या अपनी बरतरी साबित करना नहीं बल्कि सच्चे दिल से उसकी भलाई चाहना है। डॉक्टर ब्रूही इस बात पर जोर देते हैं कि नसीहत हिकमत, नरमी और मुनासिब अंदाज में की जानी चाहिए। अंदाज अहम है, बहुत अहम। दीन को भी नसीहत कहा गया है, यानी पूरे दीन का खुलासा ही खैरख्वाही है। जब नसीहत खुलूसी नीयत से हो तो असर करती है।
डॉक्टर ब्रूही कहते हैं मोमिन की नसीहत दिलों को शिफा देती है। अब दो ऐसी सिफात जिनका ताल्लुक भी दूसरों से है। कॉल 234 अल-मोमिनु यकूनु करीमा, मोमिन सखी होता है। और कॉल 235 अल-मोमिनु यकूनु सफूहा, मोमिन दरगुजर करने वाला होता है। करम यानी सखावत सिर्फ माल खर्च करना नहीं बल्कि दिल की फराखी और फयाजी है। ये बुख्ल और कंजूसी की जिद है। दिल की फराखी। जी, मोमिन दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखता है और अल्लाह की राह में खर्च करने से घबराता नहीं। सफ यानी दरगुजर करना, माफ कर देना, ये इंतकाम के जज्बे पर काबू पाना और दूसरों की गलतियों को भुला देना है। ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल जरूर है लेकिन बहुत अहम है। ये जाती तौर पर इंसान को कीना परवरी से बचाता है और समाजी तौर पर ताल्लुकात को टूटने से बचाता है। डॉक्टर बरूही की तशरीहात इनकी कदर वाज़े करती हैं। सखावत ईमान को मुकम्मल करती है और माफ़ी ईमान की खुशबू है। माफी ईमान की खुशबू है, वाह। अच्छा, जिम्मेदारी का एहसास भी अहम है। कॉल 239 अल-मोमिन यकूनु बर्रन, मोमिन नेकुकार और जिम्मेदार होता है। ये बर का क्या मतलब है? बर एक बहुत जामे लफ्ज़ है। उसमें हर किस्म की नेकी, इताअत और भलाई शामिल है। ख़ास तौर पर उसका इतलाक़ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के हुकूक की अदायगी और माशरे के तमाम अफराद के साथ अच्छा बर्ताव करने पर होता है। अच्छा, यानी काफी वसी माने हैं। जी हाँ, ये अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना और उन्हें बेहतरीन तरीके से अदा करना है। डॉक्टर बरोही के मुताबिक फर्ज शनासी अमली ईमान है, यानी ईमान सिर्फ दावे का नाम नहीं बल्कि अमल और जिम्मेदारी का नाम है। और आखिर में हिस्सा 12 का कौल 240 अल-मुमिनु यकून साहिब मजलिसिन हसनिन, मोमिन की महफिल खुशगवार होती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प समाजी पहलू है। जी बिल्कुल, इसका मतलब है कि मोमिन की शख्सियत इतनी पुरकशिश और मुस्बत होती है कि लोग उसकी सोहबत में बैठना पसंद करते हैं। यानी उसके पास बैठकर अच्छा लगता है। बिल्कुल, उसकी गुफ्तगू फजूल, तकलीफ दे या बोर करने वाली नहीं होती बल्कि इल्म, हिकमत और खुश अखलाकी पर मबनी होती है। वो महफिल के आदाब का ख्याल रखता है और उसकी मौजूदगी दूसरों के लिए बाइसे रहमत और सुकून होती है। डॉक्टर बरोही कहते हैं मोमिन की मौजूदगी एक नेमत है। मोमिन की मौजूदगी एक नेमत है। जी, ये अच्छे अखलाक, मिलनसारी और मुस्बत रवैये का निचोड़ है। तो अगर हम इन तमाम 20 अक़वाल को यानी 221 से 240 तक जोड़कर देखें जो नहजुल बलागा के हिस्सा 12 में है और जिनकी तशरीह डॉक्टर अहमद अली ब्रोही ने की है, तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ अलग अलग खूबियां नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक मरबूत और जामे निज़ाम अखलाक है। डॉक्टर ब्रूही की तशरीहात से ये वाज़े होता है कि ये सिफात एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जी, और मिलकर एक ऐसी शख्सियत की तामीर करती हैं जो अंदरूनी तौर पर मजबूत, पुरसकून और अल्लाह से जुड़ी हुई है और बैरूनी तौर पर मुआशरे के लिए मुफीद, काबिल एतमाद और बाइसे रहमत है। यानी अंदरूनी और बैरूनी दोनों पहलू। जी, हिल्म, सबर, शुक्र, कनात जैसी अंदरूनी कैफियत, अदल, रहम, सदक़, अमानत जैसे समाजी औसाफ और वरा, इफ़्फ़त, हया जैसी पाकीज़गी की सिफात, ये सब मिलकर ईमान के अमली शक्ल को मुकम्मल करती हैं। ये एक आप कह लें मिसाली तस्वीर है। लेकिन आज के दौर में जहां इतने चैलेंजेस हैं, क्या एक फ़र्द के लिए इन तमाम सिफात को अपनी ज़िंदगी में लाना मुमकिन है? और अगर कोई इस रास्ते पर चले तो उसके क्या असरात होंगे? देखें, ये एक मुश्किल सफ़र ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये मुसलसल कोशिश और खुद एहतसाबी का अमल है। खुद एहतसाबी। जी, डॉक्टर ब्रोही की तशरीह भी यही बताती है कि ये एक आइडियल है जिसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करनी है। जहाँ तक असरात की बात है, तो अगर अफराद इन सिफात को अपनाने लगें तो ना सिर्फ उनकी अपनी जिंदगियां पुरसुकून और बामकसद होंगी, बल्कि हमारा पूरा मुआशरा बेहतर हो सकता है। कम तनाज़ुआत, ज़्यादा एतमाद, ज़्यादा हमदर्दी और ज़्यादा इंसाफ। तो इन तमाम सिफात को सामने रखते हुए एक गौरतलब नक्ता ये हो सकता है कि इनमें से कौन सी सिफ्त आज हमारे मुआशरे को शायद सबसे ज़्यादा दरकार है और इनफिरादी सतह पर हम इस एक सिफ्त को अपनाने के लिए क्या पहला कदम उठा सकते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल, सोचने की बात है।